टमाटर खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए. And I'm glad to be with the students of mass communication. Now, all of you have to understand one thing: where you belong to. आप कहाँ कौन से सब्जेक्ट से बिलोंग करते हैं? आप बिलोंग करते हैं मास कम्युनिकेशन. गॉड, इट्स अ ह्यूज वर्ड. आप रोज कॉलेज जाते होंगे और फॉर्म भरते होंगे, लेकिन कभी आपने इसके ऊपर एक ऐसे लिखा है कि मास ऊपर से कम्युनिकेशन. इट इज अ वेरी सिंपल वर्ड and it is so intense and word in depth that you have to be a person who should connect with masses. और हम तो अभी इंडिविजुअल से ही बाहर नहीं निकले तो दूसरे को क्या समझेंगे? जब हम ही खुद हैं तो फिर खुदा क्या है? इसी जब में कि माई ओपिनियन, माई कन्विक्शन, माई नॉलेज, माई स्पेस, माई लाइफ, माई चॉइस, then how can I understand mass? It is like this: looking at poverty from the window of your कार विंडो से गरीबी को देखना, और एक गरीबों के बीच में जाके गरीबों में रहकर गरीबी को देखना. टू काइंड ऑफ कम्युनिकेशन. वन इज इंफॉर्मेशन जो मुझे दी गई है, उससे मेरा कम्युनिकेट हुआ है, एंड वन इज माई एक्सपीरियंस टू बी देयर or to be able to look at those problem and issues with the objectivity. और मैंने जीवन में यही सीखा है, क्योंकि I have been blessed that I have been a student of drama throughout my life. From my college days, I was on theater. I did my BCom, then I went to FTI. I did my acting course, and I learned all filmmaking and storytelling. Then I became an actor for 3 years. Then I became a writer, script writer for 5 years for other producers. Then I became a director for other producers. Then I became a producer, director, actor, editor. And then I became an educationist and I opened a film school called Whistling Woods International in Bombay. Today we have 1,100 students, and 94% of our alumni have been employed by the media and entertainment companies, top companies. So what did I learn? Right from a simple boy to the whole journey of the 40 years of my life, I learned through drama. I learned through the communication. I learned through the mass communication. And cinema is called as a mass media. So for you, the cinema is extremely important, and more than cinema, the drama is important. What is drama? Drama is how the people live with the different kind of ideologies, beliefs, outlooks, and they create conflict. Everyone has his own truth, and all those truth clashes. एक होता है कि false versus truth, evil versus good. एक होता है good versus good, truth versus truth. And that is the capacity you have to develop if you are a student of mass communication. How can I look at the things from different perspective without being prejudiced, without being judgmental? How can I do that? And that is what I learned in my life. How to look at films, how to look at social issues, how to look at the people around me, the senior, the junior, my peers. All these people I kept observing. And more than observing them, my dear, you must understand what did I +1. ये तो सब कर लेते हैं. जो +1 था, जो मैंने सीखा जिंदगी में और मैंने किया, ये था कि I observed myself first. I observed myself कि how do I react? How do I judge people? And who am I to judge people? God has made this whole universe, this whole world of 900 crore people, this country of the 130 crore people, 900 crore brains, faces, different genes, different land, they think differently.
and I have to talk one language which can be understood by all the people, or at least 80% or the 90% of the people. So I have to speak that language, whether I'm writing a poetry, whether I'm writing a drama, or writing a story, or I'm giving a speech, or I'm giving a lecture, or am I selling a thing, or am I buying a thing. You need to understand others' perspective. दुकानदार बनने के लिए ग्राहक को पहचानना पड़ता है, राइट? और जो दुकानदार ग्राहक को नहीं पहचानेगा उसकी दुकानदारी चल ही नहीं सकती। जब दुकानदारी कभी चलेगी जब वो ग्राहक की नेचर को पहचानेगा, और ग्राहक भी अलग अलग तरीके से, सुबह 9 से लेकर रात के 9 बजे तक अलग तरीके से लोग आते हैं। और कैसे वो ग्राहक, जो ठेले वाला भी है, बेचने वाला जो है, चाट बेचने वाला, उसको भी मालूम है सबका टेस्ट क्या है, किसी को मसाला चाहिए, किसी को नहीं चाहिए। So सबसे पहले तो my boys, my children, I must advise you for my 40-year experience that first examine yourself first. How good you are to understand people, and you can understand people only when you are a people person. And when you are a people person, you can only become a people person when you understand them from a different perspective. When you look at them from the bird's eye view. आप पक्षी बनो, आकाश में उड़ो, और फिर देखो अपने शहर को और कॉलेज को, क्लास को, तो कितने छोटे हैं वो। कभी पक्षी बन के देखो दुनिया को, सब छोटे 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 बाजारों में भागते चलते नजर आएंगे आप। जैसे ही आप अपने सामने रखने दो किसी आदमी को या किसी इशू को, तो बड़ा हो जाएगा, उसका बड़ा फेस बन जाएगा। So this is exactly the whole psychology and philosophy of a drama right from the beginning, from our ancient time, right from our Veda time. Communication was a very, very huge thing. And communication से इंसान ने अपना civilization बनाया, नहीं तो हम लोग सब stone age के थे। फिर आस्ता 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 लोग societies बनाई, समाज बने, रहने का तरीका सीखा, सलीका दिखा, मैरिज इंस्टीट्यूशन बनी, फैमिली इंस्टीट्यूशन बनी, राजा और प्रजा बने। कैसे बने? कैसे कम्युनिकेट करेंगे एक दूसरे को, कैसे एक सोसाइटी बनाएंगे, एक नेशन बनाएंगे, एक लैंड बनाएंगे। 3,500 साल पहले फिर वेदास लिखे गए, शास्त्र लिखे गए, रामायण लिखी गई, महाभारत लिखी गई, बड़े बड़े पोएट आए, कालिदास आए, सूरदास आए, भाषास आए। इन्होंने क्या क्या अपनी जिंदगी के जो जो सीखा था कि एक जीवन को एक सुखी और खुश रखने के लिए क्या करना चाहिए, वो सब बातें अपने नाटक के द्वारा लिखी। क्योंकि अगर वो स्पीच लिख के जाते तो स्पीच बड़ी बोरिंग होती थी। उन्होंने अपनी कविता के द्वारा लिखा, इसलिए लोग उसको गाने लगे। उन्होंने मंत्रों के द्वारा समझाया तो मंत्र पढ़ने लगे। लेकिन मंत्र भी गा के पढ़े जाते हैं, स्पीच में नहीं पढ़े जाते। तो काव्य ने प्रधानता ली, फिर नाटक ने प्रधानता ली, फिर संगीत ने प्रधानता ली। तो जब संगीत, नाटक ये सब आया, तो वहां से एक पोएट्री, ड्रामा, लिटरेचर पैदा हुआ। उस लिटरेचर ने पूरी दुनिया को एक नई दिशा दिखाई, हाउ टू लिव इन हार्मनी, हाउ टू लिव टुगेदर इन हार्मनी। लेकिन वो एक राइटर होते थे जो पूरी जनता को समझाते थे, और जनता उसको सत्कार से समझती थी। लेकिन अगर सभी जनता राइटर बन जाएगी तो क्या होगा? जब पूरी जनता ही राइटर बन गई तो उसको कौन समझेगा? फिर तो मनु महाराज भी पीछे रह जाएंगे, व्यास भी पीछे रह जाएंगे कि व्यास जी आपने क्या रामायण लिखी है और महाभारत लिखी है, हम लिख के बताते हैं आपको। आपने क्या वेदा लिखा है जो हम बताएंगे? हमारी यंगर जनरेशन है, समझे ना, हम टुडे हैं, वी आर 21st सेंचुरी। आप 20वीं सदी के 90 के लोग हैं, आप हमारे लिए ऐतिहासिक लोग हैं। और वो लोग तो बहुत ही पुराने हो गए, उनकी तो मूर्तियां जाने दो यार। अब हम बताते हैं आपको कि हम रामायण लिख के देखेंगे, हम बताएंगे उस जैसा एपिक, उस जैसा काव्य लिख के बताएंगे। क्या हम कर सकते हैं? अपने दिल से पूछिए।
200 साल में, 500 साल में भी अगर देख ले तो बुद्धा हुए और महावीर हुए, पर हमारी जनता में से कितने लोग बुद्धा बने और कितने महावीर बने? और खासकर आजादी के बाद कितने लोग महावीर बने, कितने लोग बुद्धा बने? कितने लोग हैं जो राम बने या कृष्ण बने? नहीं बने ना। उसकी वजह सिर्फ एक थी कि मास कम्युनिकेशन टकराने लगा एक दूसरे से। सब बोलने लगे हम राजा हैं, प्रजा भी कहने लगी हम राजा हैं, दूसरे को अधिकार ही नहीं दिया, सीनियर की बात ही नहीं समझी, किताबों को पढ़ना छोड़ दिया, शास्त्रों को पढ़ना छोड़ दिया, अपने नए शास्त्र लिखने शुरू किए। जब नए शास्त्र लिखने शुरू किए तो पुराने शास्त्रों के बारे में सिर्फ रेफरेंस में कहा गया, स्पीच देने के लिए रह गया है कि इन 4 चीजों के बारे में बोलेंगे तो आपका सत्कार होगा। लेकिन जब इंडिविजुअल बात कहेगी, कम्युनिकेट किया गया अपने काम के द्वारा, अपनी स्पीच के द्वारा, अपने कर्म के द्वारा, तो उसका कोई महत्ता नहीं। वो सिर्फ इंडिविजुअल ब्रेन चला, और आज 900 करोड़ ब्रेन चल रहे हैं इस दुनिया में। भारत में 100 करोड़ ब्रेन चल रहे हैं। क्या आप मानेंगे 200 करोड़ की या 100 करोड़ की या 90 करोड़? आप 90 करोड़ के लोगों की बात मानेंगे? आपको जो ईश्वर ने दिया है, 5 रिश्ते दिए हैं, माँ बाप, भाई बहन, स्कूल, पियर्स, ये आपके जीवन में जो हिस्से में आया है उसी हिस्से से आपने सीखा है। लेकिन अब क्या सीखा है कि उन्होंने जो उधार दिया वो ले लिया। हमने अपनी तरीके से कुछ नहीं सोचा कि मैंने क्या समझाया, हमने उनका जूठा उठा के खा लिया क्योंकि उनको कन्वीनियंट था। लेकिन जो कन्वीनियंट नहीं लगा उन्होंने फेंक दिया। लेकिन हमें ये मालूम नहीं पड़ा कि क्या फेंका और क्या खाया। बिना सोचे फेंक दिया और बिना समझे सोचे खा लिया। अगर हम सोच के रखे कि यार ये बात पते की है, लाख की पते की है, इट्स $1 billion लाइन, आई विल प्रिजर्व थ्रू आउट माई लाइफ, एंड दैट इज व्हाट आई लर्न इन माई लाइफ। जिंदगी में जब भी कोई एक बूढ़ा आदमी या सीनियर आदमी या भिखारी भी एक लाइन अगर अच्छी बोलता था तो मैं उसको अपने जहन में घर कर लेता था कि क्या इसने लाइन बोली है, क्या बुद्धिमान बोल बात की है। और उसी बुद्धिमता का एक खजाना बनाया मैंने अपना। उसी विजडम कोट्स को, उसी प्रोवर्ब्स को लेकर मैंने अपने जीवन में अपनी दिशाएं बनाई। मैं खुद का शिक्षक बना। शिक्षक तो आपके पास 3-4 साल के लिए हैं और अलग अलग सब्जेक्ट के लिए हैं, पर आपका शिक्षक कौन है? आप स्वयं। जब आप स्वयं शिक्षक बनते हैं तो आप सही दिशा में चलते हैं, बिकॉज स्वयं को आप जानते हैं, आप स्वयं की त्रुटियां जानते हैं, स्वयं के आप प्लस पॉइंट्स जानते हैं, माइनस जानते हैं। तो ये जितना भी पोइट्री, ड्रामा, स्टोरी टेलिंग, लिटरेचर, सिनेमा, फिर टेलीविजन आया, डिजिटल आया, आज ओटीटी आया, 20वीं सदी में सिनेमा आया बहुत बड़ा। आपको याद होगा इस सिनेमा ने पूरा छा गए दुनिया के अंदर, और एक अलग अलग कहानियां लेकर प्रस्तुत की उन्होंने। और 20वीं सदी के अंदर तो सिनेमा ने सब लोगों को रामायण भी सुनाई, महाभारत भी सुनाई, महाभारत की कहानियां अपने अपने तरीके से सुनाई। मैंने खलनायक बनाई, हीरो बनाई, कर्मा बनाई, ताल बनाई, परदेश बनाई, बहुत सी फिल्में बनाई मैंने। लेकिन कहीं ना कहीं से डिराइव की मैंने, युवराज बनाई, यादें बनाई। तो मैंने भी कहानियों में से कहानियां ढूंढी कि वो कहानियां। लेकिन जब मैंने देखा हमारा समय बदल रहा है और जनसंख्या बढ़ती जा रही है, जहां एक कमरे में 4 बच्चे रहते थे अभी 14 बच्चे रहते हैं, जहां इतने से कॉलेज बने थे, इतने से हॉस्पिटल बने थे, और लोग बढ़ गए हैं और हॉस्पिटल बढ़े नहीं, कॉलेज बढ़े नहीं, शिक्षक बढ़े नहीं, टीचर बढ़े नहीं, हम वहीं के वहीं रह गए। तो सिनेमा ने बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस किया 20वीं सदी में। और फिर 20वीं सदी 1995 के बाद 2010 तक डिजिटल ने आस्ता आस्ता आगमन किया। डिजिटल में पहले आया पेजर, फिर आया फोन, फिर आया वायरलेस फोन, फिर आया यूट्यूब, फिर आया फेसबुक, फिर आया ट्विटर। ये 2010 तक आ चुके थे। और 2090 के जो लोग थे, 1990 के जो लोग थे,
उनके लिए सब चीजें नहीं थी, लेकिन जिन्होंने जन्म लिया आप जैसे बच्चों ने 95 से लेके 2005 तक, वो इस दुनिया में आए। ये दुनिया बदल चुकी थी, वो कम्युनिकेशन का लेवल बदल चुका था, जिसमें सिर्फ माँ बाप समझाते थे और कुछ किताबें हमें दी जाती थी, हम उनको धर्म और कर्म समझ के पढ़ लेते थे और उस पर हम लोग चलते थे। तो दुनिया शांत थी अपने आप में, दुनिया में प्रेम था, दया थी, एक दूसरे के प्रति सहानुभूति थी, दूसरे का आदर था, सीनियर्स का आदर था, गुरुओं का आदर था। लेकिन जब से ये आया तो हमें पूरी दुनिया में वन ऑफ दोज 900 करोड़ लोग बन गए। पहले हम सिर्फ अपने शहर के लोग थे जिसमें 2 लाख लोग थे, फिर 20 लाख लोगों में से एक हो गए, फिर हम 1 करोड़ लोगों के बीच में हो गए, फिर हम 100 आस्ता आस्ता 50 करोड़ लोगों के बीच में बन हो गए, फिर हम अपने देश के 130 करोड़ लोगों में से एक भारतीय हो गए, और आज हम 900 करोड़ में से 1%। तो आप सोचो हम कितने छोटे हो गए। तो हमें समझाने वाले लोग 900 करोड़ लोग हैं। तो मेरा दिमाग का भलता तो करेंगे ही, बुढ़ता तो बना ही देंगे ये सब लोग। ये सब लोग आक्रामक हैं। ये वो आपके माँ बाप नहीं है, ये आपके वो भाई बहन नहीं है जो आपसे इतना प्रेम करेंगे कि कहीं आपको चोट लगेगी तो उनके दिल को आह पहुंचेगी। ये सब वो लोग हैं जो नॉलेज और इंफॉर्मेशन लेके एक दूसरे के साथ शस्त्र को मारते चले जा रहे हैं, और आप दबते चले जा रहे हैं सोशल मीडिया में, आप दबते चले जा रहे हैं इस कंफ्यूजन में कि सच क्या है, सच क्या है, सच क्या है। I meet all younger generations, all students, and I come to know how insecure, how low esteem they have for themselves. बातचीत करने में मास्टर हो सकते हैं टेलीविजन के सामने, लेकिन अंदर से उनको सबको मालूम है कि हम कहीं कहीं अपने रास्ते पे, कहाँ है मंजिल हमें मालूम नहीं। गाने तो गा लेते हैं हम, आशाएं आशाएं, लेकिन जब अपनी प्रॉब्लम आती है तो उसको समझ नहीं आता कि किसकी बात सुनूं किसकी ना सुनूं। तो सबसे ज्यादा आवश्यकता यह है कि आप अपने मन की बात सुनिए। आपका जो अंदर का गॉड है, अंदर का गॉड का मतलब गुड से गॉड बना है। गॉड वर्ड कहां से बना? गुड से, एक जीरो निकाल दिया, उसको गॉड कह दिया। तो आपकी जो गॉडलीनेस है इनसाइड, वो उसको वो कहते हैं आत्मा। जो आपकी सोल कहती है वही आपका मार्गदर्शक है। इसीलिए सब 900 करोड़ लोगों को हटा दीजिए प्लीज, 130 करोड़ लोगों को भी हटा दीजिए। सिर्फ अपने गुरुओं, शिक्षकों और जो हमारे आपके हित में सोचते हैं, जो आपसे प्रेम करते हैं, उनकी बात को ध्यान से सुनिए। वो तुम्हारे वेल विशर हैं। पहले एक परिवार में 25 लोग होते थे, अभी मैं 25 करोड़ लोगों के बीच में हूं। ये क्या बात है? इतना झगड़ा करूंगा मैं दुनिया से? सो आपको अपना स्वयं खोदना होगा। तो ये जो हम नाटक के वाले लोग हैं या सिनेमा के लोग हैं, इन सब चीजों का की कहानियां लिखते हैं, लोगों की प्रॉब्लम्स लिखते हैं, उनके कैरेक्टर्स लिखते हैं, नायक लिखते हैं, खलनायक लिखते हैं, विदूषक लिखते हैं। ये सब नाट्य शास्त्र के अंतर्गत आती हैं ये सब चीजें। हम 15 किस्म के कैरेक्टर्स लिखते हैं, माँ बाप, भाई बेटा, भाई बहन, पड़ोसी, दोस्त, मित्र, प्रेमिका, सब लिखते हैं। तो इसमें आपका विचारक होना बहुत आवश्यक है, खासकर जब आप मास कम्युनिकेशन में है। ये मैं कहना चाहूंगा आपसे, आप सब्जेक्ट कोई भी पढ़िए, लेकिन आप अपने ओवरऑल में सेल्फ ऑब्जर्वेशन, अपनी ऑब्जर्वेशन जरूर कीजिए कि आज में समझने की शक्ति कितनी है। मैंने एक लाइन पढ़ी थी कि इट इज नेवर ए टीचर हु टीचेस यू, इट इज यू हु लर्न्स फ्रॉम द टीचर। कोई शिक्षक आपको पढ़ाता नहीं है, आप शिक्षक से क्या लेते हैं, लेके गए हैं, ये आपके ऊपर निर्भर है। शिक्षक ने तो पढ़ाना है, उसका काम है। आपके लिए तो धन है, वो धन कहां से लेके गए हैं आप, वो आपके लिए बहुत आवश्यक है। इसलिए एंटरटेनमेंट पहले जो था उसमें मॉरल ऑफ स्टोरीज होती थी, जिसमें मॉरल्स होते थे, चाहे वो कार्टून में होती थी, चंदा मामा में होती, मनोरमा में होती थी, या किसी भी तरह से कहानियां होती थी। सब तरह के सत्य बताए जाते थे,
उसका मॉरल खींच के हम लोग आगे बढ़ते रहते थे। अभी मॉरल के ऊपर भी डिबेट है कि भाड़ में गया वो मॉरल, अभी क्या फर्क पड़ता है। तो ठीक है, भाड़ में गया तो कोई बात नहीं, हम 21st सेंचुरी का मॉरल बनाते हैं तो बता दीजिए, चलिए मैं आपके साथ हूँ। 21st सेंचुरी का मॉरल ये है कि मुझे शादी करने की जरूरत नहीं, मैं जिसकी मर्जी चाहिए जिससे कर लूंगी, छोड़ दूंगी, कर लूंगा, छोड़ दूंगा, मेरी मर्जी है, मुझे परिवार नहीं बसाना। चलो इस बात पे बात करते हैं, तो कोई बात नहीं, एक्सेप्ट करते हैं। लेकिन परिवार नहीं बसाना, किसी से सिंसियर नहीं रहना, दूसरे पे कंट्रोल करना, अपने आप को ऊंचा समझना, इससे आपकी ध्वंसता है, आपका ही विनाश है। कभी तो आप बूढ़े से जवान से बूढ़े होंगे, कभी धनवान से गरीब होंगे, कभी जरूरत होंगे, कभी बीमार होंगे, तो क्या काम आएगा प्रेम? जो इंसान आपके इर्द गिर्द वो आपसे प्रेम करता है, क्या काम आएगा सत्कार? जो सत्कार आपको करता है, so if you want respect from the people, first you have to respect the people. You cannot expect the people should respect me. You have to give lot of respect. 10 रिस्पेक्ट देंगे तो 2 मिलेंगी, 10 प्यार देंगे तो 2 प्यार मिलेगा। सेक्रीफाइस, ये जो पुरानी चीजें हैं, ये खराब नहीं है दोस्त, मेरी बात समझ लो, ये बहुत बड़ी पॉलिसीज हैं, ये ट्रिक हैं। उसको उन्होंने वर्चूज कह दिया, अगर कहा कि ऑनेस्टी इज अ बेस्ट पॉलिसी, तो पॉलिसी कहा ना, पॉलिसी का मतलब ये होता है कि पॉलिसी बनाया, उसको वर्च्यू तो नहीं कहा। नोबडी सेड ऑनेस्टी इज अ बेस्ट वर्च्यू। ऑनेस्टी के मतलब कि मैं आपसे ऑनेस्ट धंधा करता हूँ, आप मेरे पे और विश्वास करते हैं, आप मुझे और धंधा देते हैं, मैं आपसे काम करता हूँ, आप मेरे पे और विश्वास करते हैं, फिर मैं और ऑनेस्ट करता हूँ, आप विश्वास, और मैं बढ़ता चला जाता हूँ, और आप मेरा लोग मुझे साथ देना शुरू करते हैं। डिसऑनेस्ट होगा तो मुझे दूसरा आदमी छोड़ देगा, ये पॉलिसी है। तो जितने भी वर्च्यूज हैं पुराने, वो आपके लिए पॉलिसी है आज 21st सेंचुरी में, उनको प्लीज पॉलिसी बनाइए। जीने की पॉलिसी, काम करने की पॉलिसी, कम्युनिकेट करने की पॉलिसी, लोगों को समझने की पॉलिसी, खुद को समझने की पॉलिसी। आप माँ बाप को इतना दूर समझते हैं कि माँ बाप आज ठीक है, 4 जनरेशन पीछे हैं वो लोग, क्योंकि ऐसा 2001 के बाद ऐसा तूफान आया है फेसबुक का, यूट्यूब का, सोशल मीडिया का, कि बच्चे अलग तरीके से, और हम उनको एक्सेप्ट करते हैं। मैं उनसे प्यार करता हूँ, उनकी बहुत बातें सुनता हूँ मैं, लेकिन मैं ये कहता हूँ अपने स्वास्थ्य और अपनी हैप्पीनेस का तो ख्याल रखो यार। तुम्हारी हेल्थ और हैप्पीनेस दो के लिए तो काम करना चाहते हो, ये क्यों इधर उधर भटक रहे हो तुम? उसके लिए तुम अपने माँ बाप की इज्जत कर लो, ठीक है, वो परदादा की तरह है आज, वो बातें सोचते हैं। उनके पास फोन भी नहीं होता था, वो बैलगाड़ी में भी जाते थे दादाजी, टांगे वाले लोग थे। ठीक है, तो अब तो आपके रामचंद्र जो है वो तो घोड़े पे जाते थे, रथ पे आते थे, अब जाते हैं रथ पे। ये क्या बात हुई? यू शुड ट्रीट योर पेरेंट्स एज योर फ्रेंड, यू शुड ट्रीट योर पेरेंट्स एज योर चिल्ड्रन, बिकॉज वो उस स्पेस के लोग हैं, you have belong to a different space, so you have a different competition, you have a different information, knowledge, your cells are working in a different space altogether. आप तो 7 GB पहुंच गए हैं, 5 GB नहीं, 10 GB जी पे आ गए हैं। पिताजी हमारे भी 2 GB पे अटके हुए हैं, तो अटकने दो, पर रिस्पेक्ट तो करो। शायद उनसे 2-4 बातें मुझे ऐसी सीखने को मिलेंगी जो मुझे एप्लीकेशन बन के मेरे पूरे कैरियर में काम आएंगी। वो 2 बातें बहुत बड़ी बातें हैं, जो कहते हैं $1,000,000 डायलॉग। पिताजी ने ऐसी 2 बातें समझाई कि बस जिंदगी बन गई यार। बाकी फिर मैंने आज के समय हिसाब से एप्लीकेशन कर लिया। सो टुडे, more than information and knowledge, intelligence is important. Please understand, my boys. इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज हमारे टाइम पे बहुत इंपॉर्टेंट होती थी। यार इसको इतनी नॉलेज है, इसको इतनी इंटेलिजेंस, इतना इंफॉर्मेशन है। आज मेरे ड्राइवर को भी मालूम है जो आपको मालूम है, पता है आपको? अगर आज मुझे जानना है
कि फलाना रिलीजन क्या है या ये इसकी परिभाषा क्या है, तो मेरा ड्राइवर भी जाके पता कर लेगा और आपसे पहले बता देगा। आप दूसरे के बारे में आज पहले इंस्टा में देख लेते हैं उसकी उसकी प्रोफाइल, बाद में मिलता है, आप उसको ज्यादा जानते हैं। He knows you more than you know yourself through your Facebook, Insta. So time has changed, but what has not changed is a body. What has not changed is a soul. What has not changed is a mind, heart. ये तीन चीजें तो वही रहेंगी ना बॉस। या हमेशा ऐसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को खा के को करते रहोगे? ऐसे बनने वाले नहीं हो, इंसान ही रहोगे। तो इंसान रहोगे खुश और हेल्थ होने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कुछ वर्चूज जो पॉलिसीज हैं वो अपना लो, ले लो उनसे कुछ और उनकी कदर करो। बेवकूफ मत समझो, वो अपने समय के अपने राजा थे, अपने समय के वो महान लोग थे। आप अपने समय में महान बन लो, आप बन जाओ ना, आप बन जाइए राइटर्स ऑफ रामायण एंड महाभारत, आप बन जाइए महावीर बुद्धा, आप बन जाइए वो लोग। नहीं बन पा रहे हैं क्योंकि इतने कॉन्फ्लिक्ट्स हैं चारों तरफ, इतनी स्टॉर्म ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ओपिनियंस। किसको सुनूं, किधर जाऊं, क्या करूं? इसके लिए एक ही चीज है जो शास्त्र में लिखा है, स्थिरता, सहजता। मैं स्थिर हो जाता हूं, मैं शांत सागर बन जाता हूं। आने दो तूफान, मैं चट्टान हूं, मैं शांत हूं। उसके लिए क्या चाहिए? योगा, ध्यान, मेडिटेशन। इतनी बड़ी एसेट है आपके पास, आप भारतीय बच्चों के पास। लेकिन हम क्या समझते हैं, योगा जो वो करते हैं जो बुढ़े होते हैं, जो हरिद्वार में बैठे होते हैं, पहाड़ों में बैठे होते हैं। बहुत ही गलत बात है, बहुत गलत बात है। योगा एक ऐसा है, यंत्र है जो वाईफाई ना आपका, जो iOS इधर का पूरा उसका जंतर है, वो चार्जर है बॉस। आप चार्जर के बिना मुझे चला के दिखाओ अपना कंप्यूटर, अपना फोन, सारी इंफॉर्मेशन बंद हो जाएगी आपकी, कम्युनिकेशन बंद हो जाएगी। योगा इज दैट बैटरी, ध्यान इज दैट बैटरी जो आपको स्थिर रख के इन सब दुनिया के कोलाहल शोर से दूर रखेगी, आपको एकांत पे लाके एक अच्छा सोचने का, सही दिशा सोचने का मौका देगी। बेटा ये सही है, नहीं तो कंफ्यूजन कंफ्यूजन एंड कंफ्यूजन ऑल अराउंड। और उसका मजा ले रहे हैं, उसी को एंटरटेनमेंट बना दिया। आज न्यूज देख लीजिए, आप खड़े हैं तो बैठे क्यों नहीं, आप बैठे हैं तो खड़े क्यों नहीं, यही रोज विवाद चल रहा है। किसी ने कुछ पॉलिसी बनाई वो भी खिलाफ है, जिसने नहीं बनाई वो भी खिलाफ है। लॉकडाउन क्यों नहीं कर दिया, लॉकडाउन क्यों नहीं किया, लॉकडाउन क्यों नहीं किया, लॉकडाउन क्यों किया। इसी पे 4 महीने 6 महीने हमारे गुजर गए हैं। प्रोटेस्ट कर लो, लीडर्स बन जाओ, न्यूज में आ जाओ। So today your generation needs the understand the importance of wisdom and spirituality. When you are closer to that, you will win the war even in this cause. Because this generation is going to suffer a huge setback. I can tell you one thing. आप कितना भी आपके लीडर बोल रहे हैं आज का युवा, आज का युवा, आज का युवा, बिकॉज आपके सामने जो स्टॉर्म आया वो पहले था नहीं। आपके माँ बाप के पास है ही नहीं गाइडलाइन कि आपको बता सके हाउ टू हैंडल इट। Because the way you think independently is different altogether what your parents think. So there is no match up between two spaces. So it is, you have full control on yourself. So you have to control. तो पूरा गेयर आपको हाथ में लेना पड़ेगा। इसीलिए आपके लिए स्पिरिचुअलिटी, योगा बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मैं ऐसा समझता हूँ। ये मेरा एक्सपीरियंस रहा है और मैं उन स्टूडेंट्स को जानता हूँ, उन लोगों को जानता हूँ जो स्थिर हैं, जो सहज हैं, तूफान आने पे भी बिल्कुल शांत खड़े हैं। दैट इज वाई वी रिस्पेक्ट अवर एंशिएंट विजडम। जहाँ हमने पढ़ा है, सीखा है, यार ये लोग इतना तूफान होने के बाद भी शांत। इतना सफर किया एक आदमी के, इसका नाम रामचंद्र जी था,
वो तो भाई उसकी कहानी तो पूरी सफर से भरी हुई है। ऐसे अच्छा तो राम ना ही बने, वनवास भी जाना पड़े, त्याग भी करना पड़े, उठा भी ले जाए, सारी जिंदगी बेचारे वो रो ही रहे हैं। लेकिन एक आज 4000 साल तक लोग नहीं भूल रहे, आज भी उनकी पूजा क्यों कर रहे हैं? एक स्थिरता, सहजता थी। आने दो तूफान, चलो चलते हैं, आराम से चलते हैं। तो शांत मन कहां से लाएंगे आप? तो कम्युनिकेशन के वक्त भी जो अशांत मन से बात करता है, उसकी बात दूसरे तक पहुंचती है। जो क्रोध में, जोश में, प्रोटेस्ट में, विवाद में बात करता है, उसकी बात नहीं पहुंच पाती सुनने वाले। जो आप प्रेम से बात समझाते हैं, वो बात उसको समझ आती है। ये है कम्युनिकेशन। देयर इज ए डिफरेंस बिटवीन ए गुड डॉक्टर एंड ए ग्रेट डॉक्टर। Good doctor is who knows the prescription of every disease. A great doctor is who knows the patient by nature, who talks to the patient very sweetly. बेटा तुम्हारा कैसे, अभी आज कैसे लग रहा है? अच्छा तुम्हारे साथ क्या क्या हुआ, हमारी हिस्ट्री क्या है, तुम क्या चीजें परेशान करते है, उसके हिसाब से वो दवाई देता है। You have to create a compassion in you for the people, the person whom you are talking to. You have to buy his heart. दूसरे का दिल जीतो, दिमाग नहीं। दिमाग तो शैतान ही है, हृदय ही है जो आपकी आत्मा है। हृदय में दया है, हृदय में अच्छाई है। दिमाग तो इंफॉर्मेशन से भरा हुआ, कूट कूट के आपको परेशान करके जल्दी बूढ़ा कर देगा, जल्दी बीमार कर देगा। इसीलिए योगा का और ध्यान का हम आश्रय लेते हैं। मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैंने प्रैक्टिकल, आज भी मैं 8-12 घंटे काम करता हूँ, पता है आपको। आई वर्क 12 hours a day. I get up 7 o'clock, I do yoga for 1 day, 1 hour. I go for a walk. And I work for 10 to 12 hours and better than all youngsters around me. जितने मेरे साथ है वो थक जाते हैं 2 दिन के अंदर। अंकल परसों करें, आज क्यों नहीं? आज ना मेरे हेड में बड़ा प्रॉब्लम सा हो रहा है। अच्छा बेटा जाओ, मैं तो काम कर रहा हूँ। ऐसे बनो। सो अपने चीज को रिबूट कर लो पहले। रिबूट करने की आदत करो। क्लियर योर चैट्स, रिबूट योर थॉट्स, ब्रिंग न्यू थॉट्स, बट पॉजिटिव थॉट्स। लेट ऑल पॉजिटिव थॉट्स एंड लेट ऑल नेगेटिव गो अवे। हर हफ्ते रिबूट क्या करोगे? iOS है ना आपका बीच का, इसको कर लो, काम आएगी जिंदगी में। Am I talking sense? Thank you. तो बाकी सब चीजें नॉनसेंस हैं। ये सोशल मीडिया के चक्कर में पड़ो, उतनी जितनी जरूरत है। ये लाइब्रेरी है, ये एक विश्व की लाइब्रेरी बन चुकी है। जो चाहिए, जो तुमको चाहिए रिसर्च के लिए, उतना निकाल लो। बाकी किसी चीज को आने मत दो। जस्ट बिकॉज तुम बोर हो रहे हो तो इसलिए तुम स्क्रॉल करते जा रहे हो। डोंट डू दैट। 200-400-5 व्यूज के अंदर अपने आप को खुश मत करो। खुश करो कि मुझे जिंदगी में बहुत बड़ा बनना है। I have to compete with human beings. I don't have to compete in social media. ह्यूमन बीइंग जो बड़े बड़े लोग बने, उस तरह से मैं कैसे बनूं? बस उनसे कंपटीशन करो। छोड़ दो लाइक डिसलाइक, कुछ नहीं। जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, टाइम वेस्ट है, जवानी चली जाएगी। So I wish you all the best. Good luck. Any question you want to ask me? Thank you for watching. I think I have said Sir, we have very interesting question from the students. Some students want to know what are the qualities of a good storyteller. जो मैंने आपको कहानी सुनाई, आपको कैसी लगी? Sir, very मैंने अभी motivating. कहानी सुनाई, कैसी लगी? हालांकि Sir. लेक्चर ही था। Yes, sir. किसी लेक्चर को मैंने कहानी बनाया। गुड स्टोरी टेलर का सबसे पहले होता है कि आप जिसको सुना रहे हैं उससे प्रेम करो पहले, और फिर प्रेम से कहानी सुनाओ।
आप युद्ध की कहानी सुनाओ, लेकिन प्रेम से सुनाओ। अब बच्चों, नानी आपको जब शेर और बकरी की कहानी सुनाती है कि शेर ने बकरी को खाने की कोशिश की, और भयंकर कहानी सुनाती है कि बच्चा यूं हो जाता है, लेकिन सुनाती इतने प्रेम से है कि बच्चा डरता नहीं है, क्योंकि नानी उसको प्रेम से सुना रही है। कोई भी कहानी जब आप दिल से सुनाएंगे तो वो अच्छी होगी, जब आप दिमाग से सुनाएंगे फिर तो गई कहानी। इतना ही फर्क है। दूसरा सवाल। जी सर। सर, एक सवाल है, स्वयं और अहम के बीच की रेखा को कैसे पहचाना और समझा जा सकता है? स्वयं और अहम। हाँ, बहुत अच्छा सवाल है बेटा। स्वयं में ही अहम है, अहम ही ब्रह्मास्मि है। अब देखो, स्वयं, अहम और अहम ब्रह्मास्मि। मैं ही ब्रह्मा हूं, मैं खुद हूं, खुद खुदा से खुद बना। डंडा निकालो तो खुद हो जाता है। तो स्वयं जो है, स्वयं पॉजिटिव है, और अहम जो है वो नेगेटिव है। जैसे अहंकार आया, उस स्वयं के अंदर अहम आ गया। जब आपको ये लगे कि मैं नेगेटिव सोच रहा हूं, ये अब मैंने अपने कद से ऊपर समझ लिया है अपने आप को। उसमें एक ही तरीका आपको बताता हूं, आसान छोटी सी पुड़िया बताता हूं। जब ऐसी आप हरकत करो तो खुद पे हंस पड़ो। जब मैं किसी एक्टर को डांटता हूँ या किसी टेक्नीशियन को डांटता हूँ सेट पे, तो गुस्सा आ जाता है मुझे भी, और डांट देता हूँ, अकल नहीं है तुमको, क्या करते हो तुम। फिर थोड़ी देर में खुद हंसने लगता हूँ, बेटा डायरेक्टर हो ना, इसलिए तो डांट दिया तूने। कुछ हंसा गया वो। तो जब आप खुद पे हंसने लगते हैं अपने किसी भी रॉन्ग एटीट्यूड के ऊपर या रॉन्ग डूइंग के ऊपर, व्हेन यू स्टार्ट लाफिंग एट योरसेल्फ, यू आर इंप्रूविंग। यू शुड बी अवेयर कि अब में अहंकार आ गया। अगर अहंकार आया तो अपने आप को ऑब्जर्व कर लो। सेल्फ ऑब्जर्वेशन इज द बेस्ट ऑब्जर्वेशन। शीशा रखो अपने आप सामने हमेशा, क्योंकि आप ही खुद के खुदा हो, स्वयं के ब्रह्मा हो। तुम ही बनाने वाले हो, तुम ही मिटाने वाले हो। यू आर योर बेस्ट फ्रेंड एंड यू आर वर्स्ट एनिमी। खत्म बात। थर्ड थर्ड जी सर, एक क्वेश्चन है, भारतीय सिनेमा में स्टूडेंट्स के लिए नए अवसर क्या हैं और उनके लिए खुद को लायक कैसे बनाएं? पहले तो आपको समझना पड़ेगा भारतीय सिनेमा क्या है। सिनेमा एक टेक्नोलॉजी है जो कि विजुअल के थ्रू, एक पर्दे के थ्रू हम कहानियां वही बता रहे हैं जो कहानियां हमको हमारे समाज ने जानी है या जानना चाहते हैं। वो हमारे देश की कहानियां हैं, हमारे भूमि की, हमारी लैंड की स्टोरी, हमारे लोगों की कहानियां हैं। हम अपने लोगों के इश्यूज, समाज, कॉन्फ्लिक्ट, उनके बारे में बताते हैं। कभी किताबों से बताते हैं, नॉवल से, कभी थिएटर में बताते हैं, कभी सिनेमा में बताते हैं। आज हम पे बता रहे हैं, आज ओटीटी पे बता रहे हैं, वेब सीरीज में जा रही है कहानी। तो छोटी स्क्रीन, बड़ी स्क्रीन, टेक्नोलॉजी आती रहती है, लेकिन अदरवाइज इट इज ऑल स्टोरी टेलिंग। आज तो न्यूज भी स्टोरी की तरह बनाई जाती है। न्यूज चैनल वाले बोलते हैं चलो ये खबर को स्टोरी बनाते हैं। तो स्टोरी कैसे? पहले रोती हुई माँ दिखाओ, उसका बच्चा घूम गया, और जितना फुटेज कर सके उसके क्लोज पे रखो। अगर शो भी करना है तो जो उसके माँ बाप लाओ जो जीता हुआ है, और माँ को दिखाओ वो गरीब थी, और उसको बोलते तुम रो। वो रोती है माँ की मेरा बेटा कितना, तो तुम्हारे होते हैं। तो हर चीज को स्टोरी बनाया गया है। कंपटीशन को, विजेता को, हाथ, एक न्यूज वाले को, दूसरे की ट्रेजेडी को भी एंटरटेनमेंट बना दिया लोगों ने। सो एवरीथिंग इज स्टोरी टेलिंग, वेदर इज सिनेमा। वो सिनेमा का गणित है, व्याकरण है, उसकी ग्रामर है। आप सीख सकते हैं, किसी स्कूल से जाके सीख सकते हैं। अगर आपको इंटरेस्ट है आप फिल्म स्कूल ज्वाइन कर लेते हैं, या आप आजकल नेट में शिक्षा मिलती है, आज ऑनलाइन शिक्षा मिलती है, आप सीख सकते हैं। वो एक पर्टिकुलर आपका झुकाव है। कईयों को थिएटर से प्यार है, कईयों को नॉवल लिखने से प्यार है, कई जर्नलिस्ट बनना चाहते हैं कि मैं अपने अपने विषय पे मैं लिखना चाहती हूँ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन सर। Sir, one more question. Why all your movies are family centric? बिकॉज आई एम फ्रेंडली। मैं दोस्त बना आपके सामने, आपको लगा कि वो लेक्चर आए हैं।
मैं दोस्त की तरह ही बात कर रहा हूँ, मुझे सब प्यारे लग रहे हैं आप लोग, सब हैंडसम ब्यूटीफुल लग रहे हैं। मुझे लग रहा है कि नहीं, ये कनेक्ट हैं, ये सीखना चाहते हैं। इनके दिमाग में प्रश्न हैं बहुत, लेकिन समय की कमी होने के कारण और जूम के कारण वो बेचारे चुप बैठे हैं, ये भी मुझे पता है। आइए, कभी आइए, मुलाकात करेंगे, आपके कॉलेज में मैं आऊंगा, आप हमारे कॉलेज आइए, फिर मुलाकात करेंगे और जरूर बातें करेंगे। जी सर, थैंक यू वेरी मच सर फॉर स्पेयरिंग टाइम फॉर आवर स्टूडेंट्स, वेरी एनलाइटनिंग, वेरी मोटिवेटिंग वर्ड्स, and we would I think we would like to welcome you in the campus when you spare time for us in coming days. Corona will be over, we hope, after a few months, and we will welcome you in the campus, and our students will be able to learn skills of cinema from you. Thank you very much sir. धन्यवाद बहुत बहुत। Be Thank you, positive, sir. be positive in life. जी God सर, bless you. thank you sir, thank you very much. Thank you, sir. Thank you sir. Thank you, sir. Okay guys, how was the session? Great, sir. Sir, Okay. It was perfect. amazing. बहुत अच्छा It was था। very enlightening. Something I didn't ask my question. Very motivating. We have so many questions, but sir basically Subhash Ghai sir said he cannot spare more than 40 minutes. He is very busy man. उनके 40 मिनट हमें मिल गए, हमारे लिए कम बात नहीं है, फिर भी he stayed with us for 47-48 मिनट्स। उन्हें किसी दूसरे इवेंट को ज्वाइन करना है, लेकिन he spared 48 minutes for us, and this is not the last meeting. We will have more meetings with Ghai sir. There is no problem, and whenever you feel you want to learn some basics of Indian cinema, we would surely like to connect you with Ghai sir and some more filmmakers. Okay, meet at Yes, sir, sure. 2:30. Okay, sir. Okay, we will meet 2:30. Okay. Yes, sir. Okay, good. Okay, sir. Thank you so much. Thank you, sir. Thank you, lot, Thank sir. Thank you so much. Okay. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. That was so amazing. Thank you. मस्त काम करता है। You are hot, sir. 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 Yeah. Ayush, सर Amrut. मेरा सवाल आप